Is there equality of faith? If we look to one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, on the authority of Abu Huraira, Sahih Muslim. So no Sunni Muslim can really argue against Sahih Muslim or Sahih Bukhari. Rasulullah said, don't greet the Jews and the Christians before they greet you. And when you meet any of them on the roads, force them to go on the narrow side of it. And Imam Malik said the same thing as well. In fact, Umar, देखा ना, मैं जब ये मुसलमान आके कहते हैं ना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम, और मैं हमेशा साहिल साहब क्या कहता हूँ, जब ऐसा बंदा आता है ना, उसको हमेशा क्या कहता हूँ, यार तुम लोग तो सलाम कर ही नहीं सकते, तुम लोग तो इस तरीके से आगे सलाम कर ही नहीं सकते, तुम लोगों ने कैसे कर लिया। ये देखिए कह रहा है सही मुस्लिम सही बुखारी को तो आप लोग रिजेक्ट कर ही सकते हैं एज ए सुन्नी, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। एज ए सुन्नी मुस्लिम यू कांट इवन रिजेक्ट दीस टू बुक्स। और फिर उसने वही हदीस दी है कि एक तो सलाम में पहल नहीं करना, और दूसरा अगर तुम उन्हें रास्ते में मिलो तो सेंड देम टू नैरो पाथ। नैरो पाथ किसे कहते हैं, यानी कि ढलान वाला हिस्सा। पुराने जमाने में जो गलियां बनती थी उनमें ढलान वाला हिस्सा होता था, जिसमें घरों की सफाई का पानी, आप कह लो नाली, एक तरह की नाली जिसपे घरों का गंदगी वाला पानी जाता था, बारिश का पानी जाता था। एक ढलान वाला हिस्सा होता था कि लोग ऊंचाई वाले रास्ते पे चल सके, और नीचे वाले रास्ते के ऊपर पानी चलता था, गंदा पानी और ये वो वगैरह। तो ये जो जूस और क्रिश्चियन हैं, उन नैरो पाथ, जो नीचे वाला हिस्सा है, ढलाई वाला हिस्सा है, उसके ऊपर चलवाना है। जी आगे चले। Not the service road. Service road भी road who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said that if there was to be another Nabi after me, it would be Umar ibn Khattab in his own charter, not charter of United Nations, in his charter with the people of Sham, with those Christians of Sham, in his charter was Kafir and Muslim, they're not allowed to wear the same clothes as one another. If the Muslim, he comes out on the day of Eid and he sees Kafir with nice clothes, the Kafir has to take his clothes off and give it to the Muslims. The Kafir, when he walks inside the street, he has to wear a red belt around his neck, and he has to have his forehead shaved, and he has to wear two shoes which are different from one another. उसको कपड़े हल्के पहनने हैं, गंदे वाले, घटिया वाले। जूते पहनेगा तो दोनों के रंग फर्क होंगे ताकि कार्टून बने। माथे से बालों को काट देगा ताकि उसका बड़ा बड़ा माथा नजर आए, गंजे वाला। और लाल रंग की बेल्ट पहन करेगा। अब इस तरह का कार्टून बना के चलाएंगे उसे ताकि दूर से पता लग जाए ये जू या क्रिश्चियन है। इससे कहते हैं फाहुम ज़ागिरून। और उसने कहा कि चार्टर किसने दिया, चार्टर कहते हैं लॉ, किसने दिया, उमर बिन खिताब ने दिया, जिसको मोहम्मद ने कहा था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खिताब होता। दैट्स रियलिटी। जी चलाइए। और इसको उम्र फारूक बोलते हैं। हाँ जी। He's not allowed to, and he's not allowed to walk on the pavement. He has to walk on. He has to walk in the middle of the road, and he has to ride on a mule. And that's only for the adults, not for the children. And you can see how Islam would make the child become a Muslim. The kafir, or the child growing up in a state of kufr, he will turn to Islam. Why? Because the child will be walking along with his dad. He said, "Dad, yeah, why you got your forehead shaved?" I don't know whether these Muslims, they make me do it. Why you got to walk? Why can't you ride the animal like the Muslims? They ride the animal like this. Why are you walking with both legs dangling on the side of the donkey? Why is it every time the Muslim comes to you, he asks you for your clothes, you give it? Why is it every time he tells you to get down from the horse, you have to take it? And not only that, he said the kuffar, they can have their churches. They can have their churches, but they're not allowed to ring the bell. And if a Muslim, he's walking by, let's say, for example, a Muslim's been on edge. देखो, अब क्या कह रहा है, इस तरीके से बच्चों को इस्लाम में दाखिल किया जाता है। किस तरीके से? कि बच्चा कहेगा, यार तुम खोते के ऊपर एक ही साइड पे दोनों टांगे रख के क्यों बैठते हो? तुमने अपना माथा क्यों शेव किया है अब्बा? अब्बा जब भी कोई मुसलमान आता है तुम उसको अपने कपड़े तक उतार के दे देते हो अगर वो मांगता है तो। मुसलमान आता है तुम्हें घोड़े से खोते से नीचे उतरना पड़ता है, तुमने म्यूल को तुम, यानी कि वो कह रहे कि यार ये वो तरीका है जिस तरीके से हम बच्चों को इस्लाम में लेते हैं कि बच्चे अपने बाप को देख के समझे कि मेरा बाप कितना जलील हो रहा है, ताकि बच्चे इस्लाम कबूल कर लें, हम इनकी नस्लों को मुसलमान बना लें। इस वजह से जजिया डाला गया था। ये वो बगैरती है, ये वो हरामपुना है जो शाफियों ने किया था। दैट्स द रियलिटी, जिसकी वजह से इजिप्ट में विद इन 4 years 80% क्रिश्चियंस ने या तो माइग्रेशन कर ली थी, माइग्रेट हो गए थे, क्योंकि शुरू में पहले 2 साल में जो अमीर क्रिश्चियन थे जिनकी तिजारत थी, उन्होंने गरीबों के लिए भी जजिया दिया था। हिस्ट्री में लिखा हुआ है
लेकिन कितने लोगों के लिए दे सकते, क्योंकि उनका अपना कारोबार खराब हो रहा था। इवेंचुअली उनका अपना कारोबार खराब हो रहा था, वो खुद आहिस्ते तक गरीब हो रहे थे, और फाइनली वो भी माइग्रेट कर गए थे बहुत ढेर सारे। और 80% जो है ना 20 मिलियन से 2 मिलियन कर दिया था। दैट्स द रियलिटी, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जाके देखें। 80% गायब हो गए थे। और फिर आप लोग कहते हो कि यार ये इस्लाम बड़ा प्यार का मजहब है, बड़ा अच्छा मजहब है, बड़ा पीसफुल मजहब है। यानी इतना जलील करते थे, इतना जलील करते थे। तुम लोग इंडिया में कुछ हल्की सी ऊंच नीच हो जाए तो ये मुसलटे सड़कों पे आ जाते हैं। बहन यक्को, तुम लोगों ने किया क्या हुआ है पूरी दुनिया के साथ? इन्हें सिर्फ अपने ऊपर होते हुए चीज नजर आती है, हल्का सा भी सूख जाए तो इनकी चीखें निकलती है, आसमान तक जाती हैं। अगलों को एक काट मारते हैं, फिर इनके विक्टिम कार्ड चलते हैं। जी सर, इसी वजह चलाइएगा। से तो मैंने बोला ना जी एडम साहब जी कि जी, ये बहुत बड़े हिपोक्रेट है, डोगले है, एग्जैक्टली डोगले। एग्जैक्टली। ये लंदनिस्तानी है ना, तभी तो सर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ लंदनिस्तान बन रहा है, इसी तरह के लोगों की वजह से। ये ओपनली अच्छा लंदनिस्तान ये में बोले देखिए हैं। एडम साहब ये देखिए कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में बैठ के भी इस तरीके के बयानात देते हैं, सोचिए आप। जी सर, वही तो कह रहा हूं, सेक्युलरिज्म, तभी तो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म बोलता हूं मैं। सिख हैं ये लोग, अपनी जिल्लत को सुनते हुए इनके तलवे चाटते हैं। इनको तलवे नहीं चाटने चाहिए, इनको इनके टटे चाटने चाहिए, क्योंकि बस यही औकात रहेगी भी इन लोगों, इन सेक्युलर्स की। सीरियसली, इससे तो औकात नहीं है इन सेक्युलर्स की। दे आर सिक, मेंटली रिटार्डेड हो चुके हैं। आगे बढ़ाओ अबिंद। ये बंदा LUNDN लंदनिस्तान में है। Aajaye Road, for example. He's had some nice shisha, some nice steak, no hubble bubble. We don't deal with anything like that. And he's walking along and he's rubbing his belly and he's like, oh man, you know, I don't want to upset my wife tonight. What he can do, he can go to the church, knock on the door. John, let me in. Okay, no problem. John has to put up Abdul Ghafoor for the night. Abdul Ghafoor with his big belly, having his nice kebab. John has to open up the church and he has to go there and sleep there nice and comfortable and say, all right, John, thank you. And then carry on going early in the morning. देखा? Which wife is going to live with John under that type of circumstances? What kind of honoring is this for you to live with John? And देखो, कह रहे कौन सी बीवी जॉन के साथ रहना पसंद करेगी? जब कभी भी कोई मुसलमान रात को कबाब स्टेक खा के क्या यार मैंने बीवी के पास नहीं जाना, बीवी मुझे तंग करेगी, वो अपने पेट को मलते हुए जॉन के पास जाता है, नॉक करता है, उसे कहता है वो जगह दे, उसको देनी पड़ती है, रात को सुलाना पड़ता है। ऐसे मौके पे कौन सी बीवी जॉन के पास रहना पसंद करेगी? इमेजिन दिस, बच्चे और औरतें। जी सर। Abdul Ghafoor comes every Friday night and sleeps in our bed as well. Of course, because Sunnah is to look after the guest, isn't it? I can't make you sleep on my floor if you can't. You're Muslim, by the way. So what about when Abdul Ghafoor goes to John's house? John, sleep on the floor, and I'll sleep on the bed. What's going to happen? Tracy's going to be on the floor thinking, my husband, he's got a forehead shaved, and this one, look at this one, Khatab, mashallah. Which one's more attractive? We're not gay. I'm just saying. A man with his forehead shaved and one अच्छा belt साहिल, around his देखो neck. लोग कैसे हंस रहे हैं, आप हाँ। देख रहे लोग कैसे हंस रहे हैं पीछे से। इमेजिन ये हाँ। लंदनिस्तान में कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इनको आने दिया है, इनको इमिग्रेशन दी है। उनको बता रहे हैं कि यार तुम्हारी बीवियां जब तुम्हें देखेंगी ऐसे मौके पे तो वो तुम्हारे साथ जमीन पे थोड़ी सोएंगी। अभी आगे बोलेगा एनी और ट्रेसी बना दिया, कभी उसको जॉन बना दिया, व्हाट्सएवर। लाइक इतनी जिल्लत, और ये यार इनके तलवे चूटते हैं। लानत है यार इन लोगों पे, मर क्यों नहीं जाते सेक्युलर सारे के सारे? और Two different colored what else is shoes. there? Or Amir Khattab. Amir Khattab, we're वो talking किसका about here ट्रैक now होगी? with that nice Chechen hat, big beard, you know, a bit to the नाइट side. चचन है Yeah, वो and he's got the ट्रेसी जो है वो badges उसी की तरफ there. जाएगी। ट्रेसी जो है वो उसी की तरफ जाएगी, बैज लगा हुआ है, चिचन हैट पहना हुआ है, खाबा शाबा पहना हुआ है, अच्छे से बाल बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। सी ये दिखा रहा है वो। ऐसे हमने इस्लाम कबूल करवाया। फिर लोग कहते तलवार के जोर पे इस्लाम कबूल नहीं हुआ। साहिल साहब, इसको तलवार नहीं कहते तो और किसको कहते हैं? ये ये तो तलवार नहीं है तो और समझदार क्या? समझ जाते हैं। हाँ, ये फोर्स ही है एक्चुअली, ये मजबूर करना है। तो सर तलवार के जोर पे मजबूर किया, फिर शरिया नाफिज कराया, फिर जजिया लगवाया,
सब कुछ तलवार के जोर पे ही तो हुआ, और किस पे हुआ? वो तो अपने इलाके में सुकून से थे, हमला किया। जी चलाइएगा। Yeah, and he's got the badges there, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yeah, and he's got a big gun, and he's got a big camouflage jacket on, nice boots, gloves as well. Even if he's got a couple of fingers अब missing. देखो still कहां पे आ गया साहिल, देखो जरा, अब Yeah. कैमोफ्लेज जैकेट, बूट्स और गन पे आ गया। ये सर ये वो तलवार वाले जमाने को चेंज करके सीधा आज के जमाने पे ले आया। आप देख रहे हैं इस बात को? इसलिए मैंने कहा था ये वीडियो सही। चलाओ। अब तलवार वाले जमाने से सीधा आज के जमाने पे आया, जैकेट, बूट्स और गन। प्योर जिहादी बनाता है यार इस्लाम, और क्या बनाता है? इस्लाम जिहादी बनाता है आपको, कातिल बनाता है, कत्ताल बनाता है। दिस इज हाउ डिस्कस्टिंग दिस थियोलॉजी इज। और लोग इसको सुन के हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वाह 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 कर रहे हैं। अब देखो जितने लोग इसको सुन रहे हैं वो ये सुन के जिहादी नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? जिसके सामने बैठे हुए हैं यंग एडल्ट्स, बच्चे, लड़के, वो इसको सुन के एक्सट्रीमिस्ट जिहादी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? ऑब्वियसली इस्लाम में जैसे ही आप डीप जाओगे आप एक्सट्रीम जिहादी बनोगे, और कुछ नहीं बन सकते। या तो बाहर और है ही निकलोगे कुछ या तो फिर जिहादी बनोगे, तीसरा ऑप्शन नहीं। नहीं सर। इस तरह की चीजें पढ़ते हुए जब आपको इस तरीके से एक्सॉल्ट करके बताएगा बंदा, तो फिर जिहादी बनोगे। वो तो हम जब बताएंगे कि यार कितनी जिल्लत वाली गेम है, फिर कहीं जाके ना वो उनका दिमाग खुलता। हाँ, वो पर्सपेक्टिव मिलेगा तो निकलते हैं फिर। हाँ। What's Tracy gonna do? John's in for a problem. He just let him in for a kebab. He lost his own wife as well. So everyone's gonna become Muslim. That See, is my. he let him in for the kebab. थोड़ा He पहले let him करो। in for the kebab and he lost his wife too. हाँ, उसने अपनी बीवी को भी खो दिया। See, यार, that's it. साहिल साहब कुछ कहने लगे थे आप? नहीं मैं वही कह रहा था कि वो देखिए क्या उसने पूरा कंक्लूजन निकाला है कि वो अपनी बीवी को भी खो देगा। और फकर से So बोल this रहा is है the कि ये reality of इस्लामिक it. स्टेट है। हाँ, my dear brothers, is the Islamic State. That is the Islamic State. Exactly. अच्छा, इसके इन बाद में एक और सबको वीडियो उठा के जेल में डालना चाहिए, जैसे कि अभी इन्होंने इसको डाला हुआ है अंजुम चौधरी को। अभी इतने सालों के बाद इन लोगों ने अंजुम चौधरी है ना उसका नाम, अगर मैं गलत नहीं ले रहा हूँ शेख अंजुम तो है। चौधरी। हाँ, इतने सालों के बाद एडम साहब वो स्ट्रीट पे वहां की यही शरिया, वो कहता था कि हमें शरिया चाहिए। इतने सालों के बाद उसको अब जाके वहां उन लोगों की आंख खुली और उस पे फाइनली केस हुआ और उसको अरेस्ट किया गया। सर वो मैंने उसकी एक्स पे उसकी वीडियो दिखाई थी ना, जब वो जिहाद को प्रमोट कर रहा था। आप भी तो थे जब ट्रांसलेट करके दिखाया था मैंने, एक्स पे भी मैंने अपनी डाली हुई है। और वो बंदा कितने आराम से उसे पूछ रहा था। ठीक है, अभी जो चीज ये टीवी पे कहते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ ये बगैर टीवी के कहते हैं। तो लोगों ने रिकॉर्ड किया। आजकल तो हर किसी के पास कैमरे, फोन है, फिर फाइनली कोई ना कोई केस चला। लेकिन सर अब देखे ना, आप 50,000 में से 5 को बंद भी कर लोगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है? और सही कितनी बात। देर के लिए बंद करोगे? सर यूके जो है वो खत्म हो चुका है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ नॉट सो ग्रेट ब्रिटेन हो चुका है। हाँ, ये वाला है अंजुम चौधरी, लाइफ टाइम डंगर इन है। दे दी 2024 में। हाँ, मेरे एक्स पे जाए ना, अच्छा, आपको मिल गई लाइफ टाइम। इसका। हाँ, अच्छा, लाइफ टाइम इसको वो उसमें डालना चाहिए, काला पानी में डालना चाहिए। और इसके जितने मानने वाले सबको उठा के काला पानी में डालना चाहिए। सर ये अंदर जाके अब ये मुसल्टे बनाएगा जेल के अंदर। हाँ, ये भी है। इसी वजह से तो बोला कि आइसोलेटेड इनको रखना चाहिए, बाकियों के साथ मिलने ही नहीं देना चाहिए। जी, अच्छा एक दूसरा और भी वीडियो वीडियो है है। सर। हाँ, एक और वीडियो है। वो कहाँ चला गया? अच्छा, ये है ना। سبي لا يكون إلا الكفار. अभी ये जो अपने हिंदुस्तान के मोमिन आके अपने को बोलते हैं ये उस समय का था, इस समय का था, ये देखो क्या बोल रहे हैं। أول شيء السبي لا يكون إلا الكفار. لا يجوز سبي مؤمن، يعني لا يجوز يكون قتال بين مسلمين مثلا لأي سبب من الأسباب، الفتن
التي تحدث يكون قتال بين المسلمين لا يجوز السبي أبدا. السبي لا يكون إلا للكافر، لا يسبى المسلم أبدا وإنما يسبى الكافر. وأنا أرجو एक मिनट रुको, أن ये वही الإنسان बोल रहा है कि जो काफिर है उसको ही गुलाम बनाया जा सकता है, स्लेव बनाया जा सकता है, मुसलमानों को स्लेव नहीं बनाया जाएगा। हाँ, तो बांग्लादेश के हिंदू तो काफिर है ना, उनको तो गुलामी बनाएंगे ना फिर। ये उसी पे आ रहा है आगे। गुलाम तो तभी बनेंगे अमित साहब जब ये लोग अटैक करेंगे। उन्होंने जिजिया देने के लिए अगर इनकार किया तब फाइटिंग होगी और फिर उस पे गुलाम बनेंगे। तो अच्छा, ये क्या कहता है, आई आस्क पीपल नॉट टू बी अशेम्ड ऑफ देयर रिलीजन। तुम ये सब बातें देखकर तुम एक गिल्टी क्यों फील करते हो? तुमको शर्म क्यों आती है? शर्माना नहीं है, शर्माओ मत, गिल्टी मत फील करो, प्राउड रहो कि ये इस्लाम की يخجل من टीचिंग। دينه ويقول لا هذا قبل والإسلام لا يدعو إلى هذا. لا، كن قويا في دينك، أظهر क्या دينك. बोल रहा है? रुको, نعم. ये कह रहा है कि ये क्यों बोलते हो तुम लोग कि ये सिर्फ उस दौर के लिए था? क्यों बोलते हो ऐसा? ना बोलो, मजबूत रहो, अपने दीन पर मजबूत रहो, मजबूती कायम करो, मानो और बोलो इसको कि हाँ ये मेरा दीन है, ये मेरा रिलीजन है। जी, هذا ديني. نعم. الذي لا يرضى أن يعبد الله تبارك وتعالى فإنه يستعبد أو يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام أو يقاتل. हाँ ها रुको, ये कह रहा है कि बात यही है कि भाई कुफार के साथ लड़ाई की जाएगी, उनको या तो जिजिया देना पड़ेगा या तो गुलाम बनना पड़ेगा। तो ये बिंदास बोलो, ये इस्लाम का हिस्सा है। These are the 4 options and there is no 5th option. ये 4 ही चीज, Absolutely. ये 4 ऑप्शन ही है, कोई 5th ऑप्शन नहीं है। जी, साहब आप इस पे प्ले पे करके आप जहाँ मैं रोकना वो करता कर लीजिए। हाँ, هذه الأحوال الأربعة أبدا لا يوجد حال خامس. لذا أول ما يدعى الإنسان يدعى الإسلام، يقال हाँ, पहला क्या था اعبد الله. कि या तो वो इस्लाम कबूल करे, अल्लाह की इबादत शुरू कर दे, अल्लाह को अपना रब माने, खालिक माने, उसकी इबादत करे। تبارك وتعالى الله خلقك لتعبده، فإذا قال لا أريد أن أعبد الله और تبارك अगर वो कहे कि भाई मैं नहीं अल्लाह की इबादत करता, मैं उसको खालिक नहीं मानता, मैं उसको रब नहीं मानता, तो हम उससे कहेंगे نقول تعيش في أرض الله ولا تعبده ادفع الجزية. हाँ, तुम अल्लाह की जमीन पे रह रहे हो और अल्लाह को रब नहीं मान रहे, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, तो अब तुमको जिजिया जिजिया देना पड़ेगा। نقول ولن أدفع الجزية. हाँ, वो बोलेगा कि नहीं मैं जिजिया भी नहीं दूंगा। तो मरो। فإذا رفض أن يعبد الله ورفض أن يدفع الجزية نقول له إذن ما लना معك إلا. हाय 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 हाय, अब कह तो रहा है कोई कि choice नहीं अगर कि मरो। वो अल्लाह की हाँ इबादत के लिए भी रेडी नहीं है, जिजिया देने के लिए भी रेडी नहीं है, फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचता इल्ला ये कि हम इनसे लड़ाई करें, जंग करें। القتال فنقاتله لأجل القتال. هذا. और इसी वजह से हम उससे लड़ाई करेंगे क्योंकि ना उसने इस्लाम कबूल किया ना वो जिजिया देने के लिए रेडी है। فإن قتلناه فهو في النار. हा, अगर हमने उनको लड़ाई में मार दिया तो सीधा जहन्नम जाएंगे, और अगर उसको पकड़ लिया, जिंदा पकड़ लिया, तो क्या होंगे वो? ही बिकम अ स्लेव, फिर वो गुलाम बनेंगे। وإن أسرناه فهو من السبي، يصير عبدا رغما عنه لما رفض أن इज फोर्स्ड टू स्लेवरी, उसको जबरन स्लेव बनाएंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने जानते बूझते अल्लाह का बंदा बनने से इनकार किया है। يكون عبدا अल्लाह का बंदा मुकर्रमन तो बिख्तियारिही। गुलाम बोलेंगे ना इसको। हाँ अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह का गुलाम। हाँ, वही बंदा गुलाम एक ही होता है।
he shall become a despicable slave against his will. سيكون عبدا حقيرا بدون اختياره. هكذا هو الأمر بالنسبة للذين لا يعبدون الله تبارك وتعالى. तो ये उन लोगों के लिए है जो फिर अल्लाह की इबादत नहीं करते और ये सारी बातों को नहीं मानते, उनका यही हाल होगा. وهؤلاء يعني لا تشفقوا عليهم، هؤلاء كفار. अच्छा, उनके लिए आप जो है वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना है अपने दिमाग में, मायूसी नहीं आना चाहिए आपको, उनके लिए रहम नहीं आना चाहिए, सॉरी मत फील करो. वो अल्लाह के दुश्मन है, कुफ्फार है, जिन्होंने अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया. هؤلاء يرفضون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، يرفضون أمر الله جل وعلا، يعادون الله، يسبون الله جل وعلا. ये कहता है कि ये अल्लाह का कर्ज है कि उसने अल्लाह की अल्लाह इबादत वैसे से बड़ा मना कर दिया. कर्सफुल है यार, बहुत कर्सफुल है अल्लाह. लानती लानती, हर वक्त लानते भेजता रहता. तो क्या कह रहा है? The देखिए most एडम साहब, curseful पीपल God. शुड नॉट बी ब्लाइंडेड बाय मर्सी टुवर्ड्स अल्लाह's एनिमीज. ये देखिए बोले Exactly. रहम नहीं करना उनके ऊपर, अल्लाह के दुश्मनों पर रहम नहीं करना. यानी जो अल्लाह को खुदा ना माने, उसकी इबादत ना करे, वो अल्लाह का दुश्मन है और उन पे और उस कोई पे रहम नहीं है. कोई रहम नहीं. दे आर अग्रेसर्स, वो जालिम है. अरे बहन के बोड़ो, हैं? ये क्या था ये यार? मैंने साहिल थोड़ा तू सेंसर रोज कोई नई करके चीज बोला है. निकाल लेता है यार, ये बदतमीजी है. बहन के बड़े तो ये आप देखिए एडम साहब, ये जो इसका स्टेटमेंट है, दे आर एग्रेसर्स, हाँ? यानी जुल्म तुमने किया उसके ऊपर, तुम उसको जबरदस्ती कह रहे हो इस्लाम कबूल करो, तुम उस पे जबरदस्ती कर रहे हो जुल्म करके कि जिजिया कबूल करो, तुम उस पे जुल्म कर रहे हो कि भाई वरना हम तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे, तुमको मार देंगे या तुमको स्लेव बना देंगे. फिर कह रहा है कि वो जालिम है, हाँ? उन पे रहम नहीं करो, वो जालिम है. यार वो जालिम इसलिए कि मुशरिक है, हाँ. इनका क्योंकि अल्लाह कुरान में मतलब कहता दुनिया है से कि पूरा मामला इनका उल्टा है एडम साहब. साहिल साहब देखें, ये तो कुरान में है ना कि सबसे बड़ा जालिम कौन है? जो शिर्क करता है. शेर करे. हाँ. तो बस बात शेर इतनी की सी है सबसे यार. बड़ा देखो, जुल्म. अब आपकी डेफिनेशन ही उनकी अपनी है, तो भाई आप उस डेफिनेशन में क्या कर सकते हो? सही बात है. الإنسان لا تأخذه الشفقة على أعداء الله، على ناس هم معتدون، كمن تأخذه الشفقة على مجرم يقتل. टैंटामाउंट की क्या मतलब बनता है एडम साहब? दोबारा It बताइएगा, is मैं देख रहा था. it is tantamount to showing mercy. एक idioticity है to show mercy to them, in other words. كمن تأخذه الشفقة على مجرم يقتل الناس، يسلب أموالهم، يعتدي على أعراضهم، يؤذيهم، ثم يأتي آخر يقول ولو صحيح قتل 5 قتل 6 لكن لابد أن نسامح. لا هذا यार तुम लोग कहाँ बैठे तो हो उसके ऊपर ही डाल दिया कि वो 5-6 लोगों को मार रहा है. उसने कब मारा भाई? यार? हाँ बस सामने वाले पे डाल दिया कुछ भी, उसने कुछ किया नहीं, उसके ऊपर डाल दिया. That's the reality, خطأ. sir. That's the reality. خطأ مسامحة هذا. तो ये इनकी हकीकत है जो कि हिंदुस्तानी मुल्ला मौलवी ओपन में आके नहीं कहते, लेकिन उनकी किताबों में सब लिखा हुआ है. जो फिक्ह की किताबें वो लोग पढ़ते हैं, उसमें सब इसी तरीके की बातें लिखी हुई है. चाहे वो हनफी फिक्ह का, हाँ, मैं वो ले लेते हैं. पढ़ी थी. सॉरी, बाय द वे, सॉरी, आप बात कर रहे थे, माय बैड, आई थॉट यू फिनिश्ड. मैं वही कह रहा हूँ एडम साहब कि जो ये जितने भी मदरसे हैं जिसमें आलिम और मुफ्ती बनते हैं, हाफिज को तो छोड़ दीजिए, वो तो रट्टा के वहां से निकल जाता है.
लेकिन जो वहां पे का कोर्स करते हैं, मौलवी बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, सबको यही पढ़ाया जाता है, क्योंकि फिक्र की किताबों में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जिजिया से रिलेटेड या क्या इनके साथ मामला करना है जिहाद में, ये सारी चीजें उधर मिल एग्जैक्टली जाएगी एडम। तो बिल्कुल हमारा सवाल उन सारे सिक्युलर्स लोगों से है कि भाई ये इस्लाम की हकीकत जानने के बावजूद भी क्या आप इनको एक बैक सपोर्ट देना चाहते हो, आगे लाना चाहते हो, देश का दुनिया का बेड़ा गर्क करना चाहते हो आप लोग, जानने के बावजूद भी यू स्टिल वांट टू सपोर्ट देम एंड दिस आइडियोलॉजी? थिंक ऑन इट, सोचो इस बारे में, गौर करो। और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे जरा बराए मेहरबानी इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चलिए सुपर चैट्स लेते हैं। कोई मोमिन, एक और रिसेंट में न्यूज फ्लैश हुई इराक की, ईरान की है, जरा ये भी हाँ। देख लीजिए लगे आप। इराक की है, ईरान की नहीं, इराक की। हाँ सर, इराक की। ईरान में तो हमेशा से था 9 साल की बच्ची के साथ शादी, ये इराक कर रहा है अभी पास नहीं हुआ मेरे ख्याल में, भी प्रपोज किया बिल, हाँ पास नहीं प्रपोज किया है आज ही। पास हो जाएगा ना एडम साहब, कौन इसको देखिए इससे इख्तिलाफ करेगा? सर वो देखिए सेक्युलरिज्म कितना हुआ है वहां पे, लेट्स सी। हाँ, लेकिन इस्लाम बढ़ा है ह्यूमन तो ये राइट्स वाले प्रपोजल आया ना। उठाएंगे। हाँ, ये देखो ना, पहला स्टेटमेंट ही वही लिखा है, एक्टिविस्ट आर कंसर्न, तो वहां भी होंगे एक्टिविस्ट, लेकिन कौन उनकी मानेगा? और मेरे बाबा को जी का समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इनको 9 साल करने की जरूरत पड़ क्यों रही है? मतलब ये ऐसा अम्मी क्या आयशा देश का भला हो जाएगा? सर जी बच्चियां अम्मी पाड़नी है उन्होंने, हद हो गई यार। अम्मी आयशा की उम्र 9 साल ही तो थी। सर बच्चियां नहीं सर नहीं, जब जहन ही गंदा हो, गंदगी से बड़ा हम्म, हो, तो सर उन्होंने ऐसी चीजें ही पास करानी है ना। अब बेचारी कोई नुपुर शर्मा बोल दे 9 साल तो मोमिन सारे बोमा बोम करने लगेंगे, लेकिन ये इराक में हो रहा है, ईरान में है, वहां इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन सर मैं मतलब ये तो कुरान में इस्लाम है, का हदीस नजरिया है। में है, बाकी चीजें तो आप बात की बातें हैं ना यार, आजकल कर रहे हैं तो ये तो मोहम्मद ने भी किया था। हाँ एडम साहब, मेरा कहना ये था कि यार दुनिया आगे बढ़ रही है और देश में कानून कैसे आते हैं जो कि लोगों के लिए बेहतर हो, देश को आगे बढ़ाए, ऐसे कानून बनते हैं, चेंजेस होते हैं। ये 9 साल का कानून ला के मतलब आप क्या ह्यूमैनिटी को क्या दे रहे हो सर और देश को ह्यूमैनिटी क्या को, तरक्की पे लेके आ रहे हो? आपका ख्याल है कि ये कानून बनते हैं ह्यूमैनिटी के लिए? सर ये नहीं, कानून बनते इस्लाम में तो हैं अपनी याशी के लिए, इस्लामिक कानून याशी के लिए बनते हैं। 9 साल की बच्ची के साथ याशी करनी है और क्या है? यार एडम साहब, मेरे को फिर ये समझ में नहीं आता यार, 9 साल की बच्ची के साथ क्या अय्याशी हो जाएगी यार? क्या सर ये अय्याशी हो आपको और जाएगी मुझे समझ नहीं खाली? आता ना। सर हाँ। जी पेडोफिलिया किसे कहते हैं, और इसी को तो कहते हैं पेडोफिलिया, हमें समझ नहीं आता, इसीलिए हम पेडोफाइल नहीं है, हम्म, हमें पेडोफिलिया समझ नहीं ना आता, हद है यार उनको क्या। समझ आता है। नहीं ना, मैं वही तो कह रहा हूं ना भाई, कि क्या मिलेगा 9 साल की बच्ची से, आपको क्या मिल जाएगा, क्या मजे मिल जाएंगे? व्हाट विल यू गेट? दिमागी रूप से बीमार है आप। एग्जैक्टली, थैंक यू, यस।